Hello, friends. I hope things are going well, especially in terms of trading and investing. Welcome to Global Market SIP discussion with SD. So this is our Global Market SIP Part 2. ऑलरेडी पहला एक वीडियो एक बना चुका हूं मैं. आई हैव डिस्कस्ड इट कैसे हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये बेसिकली और एक फाइनल लुक टू द मेथड दैट वी आर डूइंग. And then onwards, from now on, this video will be, I'll do it continuously, regularly for members. On Wednesday, हम लोग ये analysis करते हैं. Wednesday, we'll do the test. Today, I'm showing you the method कि मान लेते हैं कि आज Wednesday है. तो आज अगर मार्केट को देख के क्या डिसीजन हम लोग लेने वाले हैं. And every fifth video in the series, that this is part 2, every fifth video on the series, I'll continue to do publicly. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज आवर ग्लोबल मास्टर एसआईपी का जो एक्सेल शीट हम लोग बनाए हैं. ईच वीक वी आर इन्वेस्टिंग $100. द मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लेट्स राइट इट. दिस एक्सेल इज गेटिंग अपडेटेड एवरी टाइम. मिनिमम is $10. You can have buy fractional shares in IND money or vested के जरिए. First of all, please note, I do not recommend any brokers. The broker I use is IND money, but you can use other brokers. Even HDFC Bank you can open account with. You have vested, another one. There you can open account with. So any broker you choose, I have no recommendations for any brokers. So here, what I get is each we are investing $100. Minimum is $10. Next is our method of, first of all, we have to decide what is the rules for ratio change. So we have discussed the rules. This winner it will be decided and the allocation on our strategy allocators age and following the rules. Test will be done on Wednesday and we can invest on Wednesday, Thursday, or finally Friday. Largely BIL and U10 means short-term treasury bonds and long-term treasury bonds cannot be more than 50%. Every jo investment 10% should go to short-term treasury bonds, which is BIL. This portion is the equity portion, that is S&P Dow Nasdaq. And S&P Dow Nasdaq ये ऊपर नहीं जाएगा 60% का. 60% से ज्यादा ऊपर नहीं होगा. और ये GLD and SIA, this silver cannot cross around 45% से ज्यादा क्रॉस नहीं होगा. गोल्ड जो है वो 35% से ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा. और सिल्वर जो है वो 20% से ज्यादा हो नहीं सकता. तो ये रूल है. ईच कैटेगरी है, इट विल गेट मिनिमम 50%. हर एक कैटेगरी मतलब ये जो कलर कैटेगरी मतलब येलो कलर विल गेट 15%. ग्रीन कलर मतलब इक्विटी विल गेट 15%. दिस ब्लू कलर विच इज बॉन्ड्स विल गेट 15%. दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. अब इन्वेस्टमेंट लायक नहीं रहे तो क्या होगा, वो फंड कैश में चला जाए. मीन्स that fund will go to cash if the security is not at the current time is not right for investment. Now each subcategory means each one individually, gold, S&P, Dow, Nasdaq, हर एक को 5% जरूर मिलेगा. ठीक है, मतलब ओवरऑल हम लोग के पास 3, 6, 7, 35% तो मिनिमम इन्वेस्ट होगा. अगर उस टाइम पे नहीं हो पाया तो कैश डॉलर के अंदर एक्रू हो जाएगा. मैं फर्स्ट वीक बस ऐसा एक रेशियो लिया हूं, 25-15 करके एक स्टार्ट किया हूं. नेक्स्ट वीक से हम लोग रेशियो फॉलो करेंगे. एंड डिफरेंस ऑफ जो प्राइस दिख रहा है, ऑब्वियसली दैट इज द ब्रोकरेज इज देयर, दैट वन हैज टू कंसिडर. आई डोंट एक्सपेक्ट पहला इससे हम लोग इमीडिएटली पैसा इज नॉट देयर. It is a 3-year minimum locked in fund and 4-year it can be extended. And मतलब आप यहां से पैसा नहीं उठा सकते.
This kind of closed end fund we are building. I don't take anybody's money, please don't send me fund. मैं किसी का फंड नहीं लेता, और ये एक मैं स्टूडेंट्स के लिए अपने लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। कभी भी मेरा सुन के ट्रेड करना, किसी का सुन के, मेरा नहीं, किसी का सुन के, ये मैं एकदम रूल मानता हूं। ये जो अपने जेसी लिवरमोर बताए हैं कि किसी का सुन के ट्रेड नहीं करना चाहिए, शुड नॉट लिसन टू अदर्स एंड ट्रेड, दिस इज द आयरन क्लैड रूल। You can take other systems, you can take others knowledge, you can apply other, but ultimate decision वहां पे आपको लेके, सर ये क्या करे, वो क्या करे, अच्छा बताइए आप इसमें अभी गोल्ड में डाले, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एज लॉन्ग यू आर आस्किंग, ये आप रेडी नहीं। और कभी भी मेरा सुन के मत करो, ये बेसिकली मैं अपने लिए बना रहा हूं, मैं भी इसमें इन्वेस्ट करूंगा। और ये इतना बड़ा मार्केट है गोल्ड सिल्वर, ये हम आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, हजारों हजारों डॉलर, इन तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज टू बिग, एंड दिस इज नॉट कमिंग अंडर, आई डोंट थिंक डायरेक्टली परव्यू ऑफ द सेबी। The broker may be regulated by SEBI. The securities are not directly coming under the purview of the SEBI. They are coming under the purview of ACC, Security Exchange Commission of US. So these are international securities, international investment. काफी risk हो सकता है. This is a new strategy. It may not work out. Well, तो कभी भी वंस अगेन किसी का सुन के तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए ट्रेड, ये मैं हमेशा मानता हूँ। तो लेट्स बेसिकली इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स पुट इट ऐसा, मैं बोलता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, आप करेंगे कि नहीं आपका छोड़ते हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि जीएलडी और एसआईए तो डिस्कस कर चुका हूँ, और ये मैं बीआईएल जो है ना, ये जो 1 to 3 month ट्रेजरी बॉन्ड है, ये रिस्क फ्री है, तो मैं इसमें 10% करता रहूंगा। ये एफओजी मेरा जो फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप है, या क्लाउड मास्टर, दोनों में से किसी कोई भी एक अप्लाई करना पड़ेगा इसी में। दूसरा आई डोंट नो बाकी का सेटअप का क्या होगा क्या नहीं होगा उसका, मैं तो नहीं करूंगा, मैं इन दोनों में से किसी एक का ही फॉलो करूंगा। और मैं पर्टिकुलरली फॉलो कर रहा हूँ एफओजी और फाउंटेन ऑफ गोल्ड, जो मैं हर ट्रेडिंग के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ। बट ये क्लाउड मास्टर भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत सिंपल है, बट मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ लाइन चार्ट के साथ। नाउ कैश टू बी मैनेज, ये जो कैश है, कभी एक पॉइंट पे अपना कैश हो जाएगा हजारों डॉलर, तो $750 जब क्रॉस हो जाएगा तो हम लोग एक्टिवली भी कैश मैनेज करेंगे। मैं एक्टिवली कैश मैनेज करने वाला हूं जब ये थ्रेशोल्ड क्रॉस होने वाला है इस फंड के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मेरा पर्टिकुलर फंड जो रहेगा, इस फंड के लिए मैं ये करने वाला हूँ। और जब तक ये $750 का ट्रिगर नहीं आ रहा है, तब तक मैं क्या करूंगा, तब तक मैं उसको डॉलर में ही होल्ड करूंगा। अब डॉलर में होल्ड करूंगा तो अगर मैं ब्रोकर के पास पैसा भेजा हूं इंटरनेशनली, तो वो ऐसे ही डॉलर में है, तो इधर मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसी में बस कैश छोड़ सकता हूं उधर, या तो डॉलर बेस्ड सिक्योरिटी जो है यूएसडीयू, यहाँ पे हम लोग का डॉलर सिक्योरिटी कैश मैनेजमेंट के लिए मैं इंक्लूड कर चुका हूँ सिक्योरिटीज। जीबीपी, यूरो, जापानीज येन, ये 4 ही करेंसी है जिसमें मैं मेंटेन करूंगा फंड। और एक है आई थिंक इसको भी मैं इंक्लूड करूंगा, अभी मैंने ये 4 मेजर है, बट और एक को मैंने इंक्लूड करना मिस्टेक हो गया, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, सी एच एफ, और स्विट्जरलैंड का करेंसी है ये। तो स्विट्जरलैंड का करेंसी आई थिंक FXF इज द टिगर, मैं देख लूंगा चेक करके बिफोर आई फाइनल, FXF ही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे लेट्स मेक इट दिस, फॉर्मेट कर लूंगा। आ, चलो फॉर्मेट लगा दिया, हो गया, तो डन। ये रहा, मैं अब क्या कर रहा हूं, तो अब मैं कोई भी जब ये रेशियो डिटर्मिनेशन करना है एलोकेटर्स एज, तो उसमें मैं ETF का इस्तेमाल करूंगा। बट ये जो जब डिसीजन लेना होगा कि एंट्री एग्जिट का, तो उसके लिए मैं अंडरलाइन सिक्योरिटी का चार्ट ही इस्तेमाल करूंगा, मैं ETF चार्ट बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब आएगा मेरा एंट्री एग्जिट रूल।
मेरा एंट्री एग्जिट के लिए मैं फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का इस्तेमाल करूंगा। मैं एसआईपी तभी करूंगा जब फाउंटेन ऑफ गोल्ड में वीकली चार्ट में शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश होगा, तब एसआईपी मेरा चलेगा। अगर जब भी दूसरा कुछ हो जाएगा, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड न्यूट्रल हो जाएगा या बियरिश हो जाएगा, तो मेरा ट्रेड नहीं रहेगा। सो इफ माय शॉर्ट टर्म ट्रेंड टर्न्स बियरिश और neutral, I will not go, means SIP will be in switch off mode, and अगर bearish हो गया तो 70% of the money present will be gone, will be withdrawn as cash and put under cash। ठीक है। now मनी जो एक्रूड होगा, ऐसे जमा होगा यहाँ पे खाते पे, जैसे अभी करंट जमा हुआ है यूटेन का कैश डॉलर होल्डिंग इन फेवर ऑफ यूटेन $15, क्योंकि पहले मंथ का रेशियो हम लोग यही लिए हैं जस्ट टू स्टार्ट विथ। और ये सिक्योरिटी जो मैंने चूज किया वो इसलिए ऐसे चूज किया हूं क्योंकि ये जो बॉन्ड्स है ये एक सेफ्टी देता है फंड्स को, वोलाटिलिटी कम करता है ओवरऑल पोर्टफोलियो का। ये जो इक्विटी पोर्शन है ये बढ़िया ग्रोथ देता है, और ये जो गोल्ड एंड सिल्वर है ये एक वैल्यू प्रोटेक्शन देता है ओवर पीरियड, स्पेशली गोल्ड। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, तो 70% ऑफ द मनी मैं विथड्रॉ कर लूंगा अगर शॉर्ट ट्रेंड बियरिश हो गया। अब जब फिर से शॉर्ट ट्रेंड बुलिश होगा, बुलिश मतलब वीकली क्लोजिंग, मिनिमम एक वीक का क्लोजिंग होना पड़ेगा। तो वीकली क्लोजिंग पे बुलिश जब होगा तभी जाके फिर से एसआईपी चालू करेंगे, और वो जो मनी एक्रू हुआ वो 3 इंस्टॉलमेंट में क्लियर कर देंगे। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश होने के बाद फिर से वो न्यूट्रल हो गया, पॉज कर देंगे। अगर फिर से बियरिश होगा, जो जो मनी अभी अकाउंट में है उसका 70% और चला जाएगा, मतलब एज अ कैश हटा लेंगे हमेशा दिस रूल ऑफ 70%। जो भी मनी पड़ा होगा उसका फिर 70%। ना ये जो फंड ये मुझे क्लोज एंड फंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग रिसेशनरी फेज में है, तो इक्विटी में ड्रॉ डाउन आ सकता। तो फिर ऐसा फंड क्यों कर रहा है इस टाइम पे? आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द फंड। इसमें बॉन्ड रहेगा प्रोटेक्शन के लिए, और इक्विटी जब बियरिश होगा मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ऑब्वियसली बियरिश, बट उसका पैसा एक्रू होता रहेगा। एंड इन द राइट टाइम जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश होगा, and I'll have the money on my fund to fully invest. So it's a good time, क्योंकि मैं रिसेशन के लिए यही कर रहा हूं। दिस विल बी अ वेरी गुड फंड। मैं मुझे लग रहा है मेरे लिए, दूसरे के लिए क्या होगा आई डोंट नो, बट मेरे लिए लग रहा है ये अच्छा फंड होगा। मैं जो भी ट्रेड करता हूं मेरे लिए करता हूं, मैं कभी भी दूसरे का पैसा लेके ट्रेड नहीं करता। नाउ यहाँ पे एक्रूड मनी ब्रॉडली क्लियर हो गया। मैं मैक्सिमम अक्टूबर 2027 तक होल्ड करूंगा। अगर फंड का ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा हो गया, अराउंड 20%, अगर फंड का ड्रॉडाउन हो 25% चलिए रखते हैं अभी, आई डोंट थिंक हमें उतना ड्रॉडाउन फेस करना पड़ेगा, बट अगर ऐसा ड्रॉडाउन हो गया तो हम लोग फंड को पॉज कर देंगे सिग्निफिकेंट फॉर टाइमिंग के लिए। नाउ ये पोजीशन एवरी वीक लेना होगा, प्रेफरेबली जिस दिन सिक्योरिटी पॉजिटिव है, फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अगर पॉजिटिव नहीं रहा तो हम लोग फ्राइडे इन्वेस्ट करें। बीआईएल हम लोग हफ्ते, मतलब वेडनेसडे के दिन ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई रिस्क, प्राइस रिस्क नहीं, इंटरेस्ट रेट इनकम है। सो इट्स इंटरेस्ट रेट इनकम ब्रॉडली। आई थिंक मेरा स्ट्रेटेजी इज क्लियर। तो अब मैं एलोकेशन रेशियो मान लेते हैं कि टुडे इज अ वेडनेसडे, सो नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस ग्लोबल मास्टर एसआईपी मैं करने वाला हूं, आई विल डू ऑन वेडनेसडे। सो हम देन ऑन एवरी वेडनेसडे मैं मैनेज करता रहूंगा मेरा ये फंड को। और जब अगर फंड का वैल्यू, मैं थोड़ा रिस्क ले ही रहा हूं क्योंकि रिसेशन है, मुझे थोड़ा
थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देना होगा फंड को, तो मैं अभी के लिए 25% रख रहा हूं, विच इज आई कंसिडर क्वाइट हाई। उतना बड़ा रिस्क होना नहीं चाहिए बिल्कुल, बट मुझे लग रहा है कि अभी के लिए मैं एक मेंटल सेटिंग के लिए वो फंड का ड्रॉ डाउन रखते हैं। और यूजुअली क्वार्टरली मुझे लग रहा है इसको इवेल्युएट करना ठीक रहेगा ओवरऑल इस फंड को। तो इस बेसिस पे मैं ये स्ट्रक्चर अपने लिए फॉलो करूंगा। तो एसआईपी स्टेटस स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड लाइक दिस वन, अगर मैं U10 में देखूं, U10 पॉज मोड में है, इसका अलावा एग्जिट मोड है, एग्जिट मोड में भी जा सकता। नाउ दिस इज एक रेशियो मैं आर्बिटरी ले चुका हूं ब्रॉडली, उतना भी आर्बिटरी नहीं, 35% मैं वैल्यू प्रोटेक्शन में डाला हूं। अबाउट एस एन पी डाउ नैस्डैक मिला के अबाउट 35% ग्रोथ में डाला हूं, एंड 30% ऑफ द मनी मैं बॉन्ड्स में यानी सेफ्टी में डाला। तो दिस इज नॉट अ बैड स्ट्रक्चर टू स्टार्ट विथ। उसके बाद से मैं अब क्या करने वाला हूं, एवरी वेडनेसडे अब ये रेशियो डिसाइड करना। तो अभी मैं मेथड दिखा रहा हूं, विच मेथड आई एम गोइंग टू फॉलो, एंड ये जो एनालिसिस होगा ये हर वेडनेसडे आई एम गोइंग टू डू। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप में जा रहा हूं। अपने फाउंटेन ऑफ गोल्ड में सेटअप में जाने के बाद मैं सिक्योरिटीज को कंपेयर करना चालू करूंगा। आई ब्रिंग इट टू वीकली चार्ट। मेरा जो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर शो करता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड, और विच इज अवेलेबल इन द टेबल में भी, टेबल में भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज हियर। सो लेट्स मेक द टेबल अ बिट लार्ज। टेबल हमें वैसे भी यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें बस बैकग्राउंड कलर चाहिए। बैकग्राउंड कलर है लाल, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर लाल जब होता है तब पॉज होता है। तो अब हम लोग सिक्योरिटी को देखेंगे कि कौन जीत रहा है, हु इज द विनर। तो विनर के लिए पहले देखेंगे एसपीएक्स, यानी चलिए एसपीएक्स नहीं, ES1 which is US 500 divided by GC1 which is gold. Now we have a ratio in weekly chart. So for quite some time, for quite some time, we can see that it is basically the gold which is the winner. गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट होना चाहिए था ओवरऑल इक्विटी से ज्यादा, सो इक्विटी एंड गोल्ड के बीच में गोल्ड इज द विनर। अब देखेंगे गोल्ड और सिल्वर के बीच, तो ऊपर लेते हैं सिल्वर, SI1 बाई GC1। तो यहां पे बेसिकली दिखा रहा है न्यूट्रल। ब्रॉडली क्या दिखा रहा है, बैकग्राउंड कलर को फोकस कर रहे हैं सबसे ज्यादा। बैकग्राउंड कलर यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज न्यूट्रल। तो हम लोग इक्वली डिवाइडेड है इन द वीकली चार्ट बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। अब हम लोग कंपेयर करेंगे GLD यानी द ETF डिवाइडेड बाय U10 यानी लॉन्ग टर्म बॉन्ड। So it is clear that it is the gold that is winning. So gold is clearly the winner against the bond. BIL चेक करने की जरूरत नहीं है, दैट इज द इंटरेस्ट रेट फ्री इंस्ट्रूमेंट, वो मैं नहीं करूंगा। तो अब क्या करना है, अब करना है मुझे SPY दैट इज इक्विटी, और उसके साथ ये बॉन्ड वाला, ये भी दिखा रहा है कि इट इज द इक्विटीज जो जीत रहा है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। तो इस सिचुएशन में हम लोग को पता चल रहा है हु इज द विनर, द येलो ग्रुप और द प्रेशियस पैक इज द विनर। Who is the second in line? Second is the line in the equity group, and third is the bond group. So bond group came the lowest. That means let's now go back to our Excel
Now we will have to follow our rules. So bond allocation will in the next round will be lowest. Lowest BIL can be, that is 10%, and BIL is say lower, it is not possible, that is not allowed. And bonds U10 will be lower 5%, but that will go to pause. If pause mode is there, pause mode में हम लोग आएंगे. But this will be allocated lowest. The winner is the yellow group or the precious pack, means the wealth protection pack. Wealth protection pack, gold and silver, it's calling for equal division. So we will put maximum that is possible in silver, that is 20%. And we will do 25% on gold. So now, because 45% is the maximum allowed in the precious pack. So 45% allocation will go to gold and silver, and 15% went to bonds. Remaining is the 40%. 40% has to be allocated towards equities, yani growth. Let's go back to the chart. Now we will start looking at individual charts, means security charts. And security charts, we do not watch ETF. We watch S&P. Oh, sorry, another round of ratio complete nahi hua. Ki, is it the SPY or is it the DIA? Who is the winner? S&P or the Dow? It is clear that S&P is the winner. Then we check, is it SPY or QQQ, means NASDAQ? Who is the winner? No one, neutral. Then we look at DIA by QQQ. Who is the winner? Neutral. That means S&P is winning against Dow, but neutral against NASDAQ. Dow is losing against S&P, neutral against NASDAQ. And NASDAQ has scored 2 neutrals. So the highest weightage in the 40% group has to go towards S&P. And the lowest of the weightage has to go towards Dow, because Dow has lost against S&P. It has 1 negative. So the ratio is now becoming quite clear. Let's go to our Excel. That means 40% highest weightage will go to S&P 500. If all of, agar sub neutral hua, फिर भी highest weightage S&P को जाए. That is the mother index. So 20% of the weightage S&P को दे दिया. इसमें थोड़ा modification मैं कर सकता हूं. I'm considering a modification. That is, I might consider this gold silver 45% because gold silver एक special asset है इस recessionary cycle में. So इसको मैं 50% weightage करता हूं कि अगर bonds को 50% दिया हूं, gold silver को भी 50% का weightage करना चाहिए. मतलब maximum can't cross. So maximum weightage ही मैं देना पसंद करूंगा इस टाइम पे. So maximum weightage लिए इसलिए gold में next round में 30% दे. Because दोनों मिला के 50 and silver I will not change it to above 20. So gold को थोड़ा ज्यादा ही देते. So 30% चला गया gold के तरफ next round में. And ये 20% जो है 20% I'll give to S&P 500. तो मेरे पास 50 और 15, 65, 35% allocate कर. So 10% will go to NASDAQ और 5% will go to Dow Jones. क्योंकि Dow is the lowest rating इसको मिला है in the equity group. So now the asset is broadly allocated, 30% going to gold,
if this is Wednesday methodically, तो 20% मैं डालूंगा अभी। अब 20% ऑफ वेटेज मैं डालूंगा S&P 500, 5% डाउ जोन्स, 10% नैस्डैक, 20% डालूंगा सिल्वर, 5% यूएस लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड 10% मैं डालूंगा अभी BIL यानी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। अब मुझे देखना होगा कि कौन सा SIP स्विच ऑन या स्विच ऑफ मोड में। तो इसके लिए फिर से चार्ट में जाऊंगा, I'll go to chart, ES1 क्लिक करूंगा, ES1 बैकग्राउंड ग्रीन है तो SIP ऑन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए चल लेते हैं कि YM1 यानी डाउ, बैकग्राउंड इज ग्रीन यानी शॉर्ट ट्रेंड बुलिश तो SIP ऑन। नैस्डैक बैकग्राउंड ग्रीन, शॉर्ट ट्रेंड बुलिश, SIP ऑन। नाउ 10 ईयर ट्रेजरी के लिए हम लोग ट्रेजरी का चार्ट देखेंगे, इंटरेस्ट रेट का, बैकग्राउंड ग्रीन, we will do pause mode. We are in a pause mode and this is mean background green means exit mode. Neutral was background green matlab U10 value will go down. Interest rates will go opposite to the price. बॉन्ड प्राइस के ऑपोजिट में चलता है, तो बैकग्राउंड जब इंटरेस्ट रेट का ग्रीन हो जाएगा तब मतलब एग्जिट मोड आ गया। तो अब एक्सेल में क्या करना होगा, एक्सेल में SIP को अपडेट करना होगा। SIP स्टेटस पॉज मोड से एग्जिट मोड, एग्जिट मोड में हम लोग चले गए एंड इसको कलर रेड कर दूंगा, फ्लैश एग्जिट मोड। तो जितना भी होल्डिंग है 70%, करंटली कोई होल्डिंग नहीं है बिकॉज ऑलरेडी ये पॉज मोड में था। जो भी होल्डिंग है इसका 70% वी विल विथड्रॉ एंड कंप्लीटली पुट इन कैश। सो गोल्ड ऑब्वियसली स्विच ऑन मोड में रैली कर रहा है, सिल्वर भी सेम। सो सब कुछ स्विच ऑन मोड में है एक्सेप्ट यूएस लॉन्ग टर्म ट्रेजरी इज एन एग्जिट मोड, ठीक है। तो दिस वे बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। आई थिंक ब्रॉडली मेरा आइडिया मुझे खुद ही क्लियर हो गया कि मैं क्या करने वाला हूं विद दिस एसेट एलोकेशन। तो मैं $100 खुद के लिए फिक्स कर रहा हूं। चलो $100 करके मैं ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, डिफरेंट स्ट्रेटेजी आई क्रिएट, डिफरेंट स्मॉल स्मॉल एलोकेशन पोर्टफोलियोज। तो उनमें से एक मेरा रहेगा ये ग्लोबल मास्टर SIP। ग्लोबल मास्टर SIP में मैं $100 करके ऐसे एसेट एलोकेशन स्ट्रक्चर में उसको इन्वेस्ट करता रहूंगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर जो भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। प्लीज याद रखिएगा किसी का सुन के ट्रेड मत कीजिए, इंक्लूडिंग मेरा। मैं मान लेते हैं खुद के लिए बना रहा हूँ, ये मेरा एक वीडियो लॉग रहेगा और साथ में स्टूडेंट्स है जो ये सेटअप इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी हेल्प हो जाएगा। So that's all friends, thank you so much for watching this video. All the best from my side to your trading, and as always, happy trading.